रिकॉर्डिंग ला देना। आवाज आ रही वधिया? आवाज हुण तो बोल सकती वधिया आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। पहला टॉपिक रिजिड बॉडी। देखो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी। हाँ भाई, रिजिड बॉडी दी सॉलिड बॉडी एक इदां दी जिहदे पार्टी एक इदां दी बॉडी जिहदे पार्टिकल की अपनी पोजीशन अपनी रिलेटिव ओरिएंटेशन जिहड़ियां पोजीशनस आ उन्होंने चेंज कर उन्होंने मैं रिजिड बोल। फॉर एग्जांपल आ जिहड़ी बॉडी एक रिजिड बॉडी है, इहनूं जिन्ना मर्जी फोर्स ला ला इहदे पार्टिकल अपने एक दूजे दे रिस्पेक्ट च उदां दे रहणगे। ठीक है, जिहदे पार्टिकल फिक्स होण उन्होंने मैं रिजिड बॉडी बोलदे। ठीक है, लिख दिओ a body is rigid. A body is said to be rigid. एक बॉडी नूं मैं तां बोलूंगा if its particles does not change, if its particles does not change, जो कि पार्टिकल चेंज ही कर दे। ठीक है, if its particles do not change its relative position, their relative position, if its particle does not change their relative positions, जो कि पार्टिकल अपने रिस्पेक्ट च पोजीशन चेंज नहीं करते इवन द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, even when a large force is acting on it। गल समझ आई नहीं है? मैं इस लकड़ ते काफी फोर्स भी लगा तावी जे ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਰਿजिड बॉडी। ओके कि नहीं ओके? तो कोई मोर डेफिनेशन नहीं ओके जी। ऑलरेडी अपना टॉपिक है रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी की मोशन की तरह है, दिस इज टॉपिक। ओके, रिजिड बॉडी की मोशन की तरह ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ भी हनी बोल भाई। सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही बेटे मोशन, ठीक है, नवा टॉपिक लिखांगे ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ बेटा, मोशन ऑफ द रिजिड, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की मोशन। रिजिड बॉडी की मोशन ਵਿੱਚ बेटा ਅਸੀਂ बेसिकली तीन टाइप मोशन पढ़नी है। ठीक है, पहले टाइप की मोशन सारी ट्रांसलेशनल, लिखो ट्रांसलेशनल मोशन। ਅਸੀਂ रिजिड बॉडी मोशन पढ़नी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले टाइप की मोशन ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन च की ਹੁੰਦਾ कि कोई बॉडी ट्रैवल करती है तो जिद्दी डायरेक्शन में ਉਹਦਾ सेंटर मास ट्रैवल करता सारे पार्टिकल भी उधर ਨੂੰ ट्रैवल, जिन्नी स्पीड ਦੇ ਨਾਲ सेंटर ऑफ मास ਤੋਂ उन्नी स्पीड ਦੇ ਨਾਲ पार्टिकल भी तुरदे। ठीक है, जे सेंटर मास इदां इदां चला तो बाकी पार्टिकल भी इदां चलदे आ। मतलब कहने का ये कोई जरूरी नहीं भी ट्रांसलेशनल मोशन जमा सीधी, ट्रांसलेशन मोशन च सारे पार्टिकल सेम स्पीड दे सेम डायरेक्शन च इकट्ठे ट्रैवल करनगे। ठीक है, इदां दी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक है, इहदी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, लिख लो इट इज द मोशन इन विच every particle of the body, it is the motion in which every particle of the every particle of the rigid body का एक particle, every particle of the rigid body moves on the same direction, moves
along the same direction with the same speed, with the same velocity की डायरेक्शन भी इनको हो जाती है with the same direction with same velocity as its center of mass moves. ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਹੈ इस बॉडी के पार्टिकल तो मैं बड़ी नहीं बना या बात नहीं करनी ठीक है आप मान लो भी कोई 2-3 पार्टिकल बना ले दादा सेंटर ऑफ मास इतनी कितने होगा ऐसे सेंटर पे मान लो CUM ठीक है तो ये बॉडी इधर 20 स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਵੀ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ 20 ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ 20 ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ 20 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੋਗੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀਕਲ 1 2 3 ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਲੋਗੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਐਂ ਮੂਵ और ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਡਸਟਰ ਕਿ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉੱਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਐ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਗਏ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ठीक है ये मोशन साडी ये भी ट्रांजिशनल मोशन बेटे जी समझ आ रही कि नहीं पार्टिकल जेडे है सारे ये तीन ही पार्टिकल आए पार्टिकल वाले हैं पर वो सारे पार्टिकल इन डायरेक्शन दी सेम स्पीड नाल ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी बच्चे को कोई शक हो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता ओके ये ट्रांसलेशन मोशन द ट्रांजिशनल मोशन विच सारे पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जिधर सेंटर ऑफ मास है ठीक है सेम स्पीड से नंबर 2 रोटेशनल मोशन इक्वली का मोशन कंप्लीट कर ट्रांसलेशन नंबर 2 लिखना है रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन बड़ा सिंपल रोटेशनल मोशन होता भी एक पार्टिकल पहली गल रोटेशनल मोशन किसी से बॉडी की एक्सिस दे अबाउट होती है जिदा ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲ लगभग सारे घरां ਉਹ ਪੱਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੱਖੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ पक्का घूम रहा है एवरी पार्टिकल उस एक्सिस दे अबाउट है नंबर 2 अपने को एक ग्लोब है ये ग्लोब रोटेट करता बहुत सोहना और आ वाला एक्सिस आ वाला ये लाइन जमा सीधी थले और इस एक्स दे अबाउट आ घूम ठीक है मैं इतने कोई पॉइंट मान ली आ वाला पॉइंट तो ये पॉइंट जो रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट सर्कुलर होगा और वो सर्कुलर पाथ इस एक्सिस दे 90 डिग्री ते होगा मतलब ऐसा होगा सर्कुलर परपेंडिकुलर होगा एक्सिस इदा होगा अबाउट परपेंडिकुलर सर्कल बनाओ
ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਸਰਕਲ ਬਣਾਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਸਰਕਲ ਬਣਾਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ every particle makes a circular path which is perpendicular to the axis of rotation. Axis of rotation ਜੇ body ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਭੱਜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, और मैं एक बॉडी और मैं रोटेशन कर, देखो आ मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट मैं घूम रहा, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट मैं घूम रहा। दसो आ चीज देखो, आ पेन केड़ा पे आ पेन की बनाया इत्थे, आ पेन की सर्कल पे ट्रैवल कर नहीं कर रहा, इस पेन ने मेरे आले एक सर्कल बनाया ना, समझ आ रही गल? एक कल्ले ने नहीं बनाया, मेरी बॉडी ने उस एक्सिस अबाउट एक सर्कल बनाया, मेरे मोढे ने भी बनाया, इस मोढे ने भी बनाया, ठीक है ना? मेरी बॉडी हर एक पार्टिकल ने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले सर्कुलर पाथ तैयार किया है, ओके। इदां दी मोशन मैं बोलूंगा रोटेशनल मोशन। सर दोबारा समझ नहीं आया आ गया से इधर से तो फोन ना चुको, नहीं सर कट कंसंट्रेट। मैं दोबारा सुनो, सिंपल जी गल है बेटा, कोई भी बॉडी है, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखो फिर दोबारा समझाऊंगा, लिखो तो the motion in which every particle of the body makes a circular, moves along a circular path, moves along a circular path, हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करता, the motion in which every particle of the body moves on a circular path which lies in a plane, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ, lies in a plane perpendicular to axis of rotation is called as rotational motion. Is सर called पाथ as तो बाद की लिखा है rotational motion, which lies in a plane, which lies in a plane perpendicular to axis of rotation. Axis of rotation the perpendicular plane चलाई is called as rotational motion. इदां दी मोशन ਨੂੰ rotational motion बोलते, ठीक है। दोबारा सुनो, ਹੁਣ मैं एक डायग्राम बनाना, फिर दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दोबारा समझा दूंगा। हां, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ रोटेशन ही नहीं दसी जाना ਤੁਹਾਨੂੰ। रोटेशनल मोशन सब इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है ना। आ मेरे को रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी मैं किसी भी एक्सिस पे घुमा सकता हूं, एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन में ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬॉडी ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬॉडी ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ, मतलब ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਆ ਲੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਬਣਾਊਗਾ, ये भी सही है। पर सर्कुलर पाथ आऊगा, ये सर्कुलर पाथ इस सर्कुलर पाथ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाल 90 डिग्री का एंगल बनाऊगा, तो ये भी गल सही है। गल मान लो कि आ पार्टिकल, ये पार्टिकल बड़ा सर्कल बनाऊगा, होर पार्टिकल आओ छोटा सर्कल, आपदे हिसाब नाल बन सकदे, किते लिखे होया भी सर्कल ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ बनाने, जिद्दां दी बॉडी दा सर्कल बन गया, इन्हें आपदा बड़ा सर्कल बना लिया, ठीक है। ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਵੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬॉडी ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਕਸਿਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਮੈਂ मान ਲੈਣਾ ਜਾਂ m1 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ 2 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਤੇ ਚੱਲੂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ every particle of the body makes such kind of ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਡੀ 3D ਦੇ ਚਾਹੇ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? बना ली सर। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਮਗਰ the radius of each circle, ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣੇ x1, ਆ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ x2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆ x1 ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆ x2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਖ the radius of each circle is equal to perpendicular distance of the particle from axis of rotation। axis of rotation तो perpendicular distance कितनी है ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲਿੰਗ। ਰੋਲਿੰਗ ਇਹ ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ। ਆ ਜਾਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆ ਗਈ सर परपेंडिकुलर तो बाद ही पाया ही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲਿਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ओके सर। ਆਪਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ next and last ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੁੱਸੇ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? और रुसना किहनूं आउंदा दो लो भाई। छोटे होंदे मान लो भी घरे कोई चीज नहीं, ठीक है, तो फिर उस जाते मैनूं नहीं पता, मैं तो चीज नहीं फलानी चीज हाँ। मैं तो वो की बोलते एक गुलगुले जे लैके हुंदे गुलाबी जे रंग दे रूई जिहा हुंदा बोलदे ओनूं, वो गुलाबी जे रंग दा लिफाफा जिहा भरिया हुंदा वो रूई आ, खंड जी हुंदी है, की बोलदे ओनूं? कॉटन कैंडी है ना सर? किहड़ी कैंडी? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਰੋਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? बुड्ढी के बाल। बुड्ढी माई के बाल। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। रोलिंग से ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਆਲੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੋਲਿੰਗ। ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬਾਡੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। It is the combination of translational motion and rotational motion। बेटे ट्रांसलेशनल मोशन ते रोटेशनल मोशन एक कॉम्बिनेशन। ट्रांसलेशनल मोशन की होंदी है तो रोटेशनल की होंदी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਲਿਖ ਦਿਓ। in rolling motion every particle of the body, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ COM ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਐਕਸਲ ਬੋਲ ਗੱਡੀ ਐਕਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਖੁਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ? v ਸਪੀਡ ਦੇ ਜਾਂ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਇਨ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, शाबाश, बना ली सर। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, रोलिंग मोशन एवरी पार्ट ऑफ द रिजिड बॉडी, every particle of rigid body moves along the circular path, moves along the circular path। हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता और सर्कुलर पाथ के अबाउट होता, about the axis, about the perpendicular axis passes through, about the perpendicular axis passes through COM, center of mass जो लंघना perpendicular axis का, ठीक है। अब वाला बात ध्यान देनी, इस axis के about circular path पे घूम रहे and the COM, center of mass खुद, and the COM shows translational performs translational with a particular velocity, एक खास वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो बेटा सेंटर ऑफ मास कल्ला ट्रांसलेशनल मोशन करता है, बाकी सारे पार्टिकल रोटेशन मोशन करते हैं। ते कंबाइनेशन है, उन की बोलते हैं, इना दोनों मोशन कंबाइनेशन को बोलता है रोलिंग मोशन। की बोलता बेटा इनु मैं रोलिंग मोशन। किसी भी बच्चे ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ अपना क्वेश्चन करे। हाँ भाई, नो मैंने नहीं सर। लगता कोई शक हो, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। हुण थोड़ा जिहा कम अपना जिहड़ा है कोई क्वेश्चन सुधाया
एक एक्चुअली की है मैनू इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन करानी है रोटेशनल होंदी है इक्वेशंस ठीक है उन्हें इक्वेशंस के किते ना किते सानू क्वेश्चन जाते हैं ता करके वो करनी जरूरी है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन हुण आपां इत्थे रोटेशनल मोशन ते कंसंट्रेट करना ठीक है रोलिंग मोशन भी है जो भी करा पर रोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन इन्हां दोवां ते ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कि चैप्टर नहीं सकता रोटेशन लिखियो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हाँ जी इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन बेटे रोटेशन मोशन दिया इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन ये मेरा नवा टॉपिक इक्वेशन ऑफ रोटेशन इतना थोड़ा सा बहुत आसान ठीक है पहली गल ते भी सानू इक्वेशंस ऑफ मोशन आउंदी जे सानू इक्वेशंस ऑफ मोशन आउंदी सानू इक्वेशन रोटेशनल मोशन भी आउंदी ठीक है की करना असि ध्यान नाल सुनो ध्यान नाल सुनो बड़ी जिद्दां इक्वेशन पढ़ी v is equal to us एक पढ़ी s is equal to ut plus half a to b square एक पढ़ी v square is equal to u square plus 2s तो भी साथ टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी की नहीं की बस मड़ा ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਈ Yes, sir. ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ जो घूमना शुरू कर दिया इनिशियल पहला लिखूंगा मैं ध्यान नाल सुनो u इनिशियल वेलोसिटी थी ना u इनिशियल वेलोसिटी मैं लिखा ओमेगा नॉट w दे गोल कर दो बन जांदा ओमेगा ये मैं तो सर्कुलर में करवाया होया एंगुलर स्पीड ओमेगा आ लीनियर स्पीड है एंगुलर स्पीड है ठीक है एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगल अपॉन ठीक है मोशन इन सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन जैसी गल्ला करवाई है ओके ओमेगा इज इक्वल ओमेगा नॉट लिख दो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट को गणित बननी है फिर ओमेगा ओमेगा है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ठीक है ए की थां पे यूज करेंगे अल्फा अल्फा पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली जे समझ एंगुलर एक्सेलरेशन की है तो खाप के दी बन गई तो मनी दी स्पीड है ना ਇਹਦਾ वो एंगुलर एक्सेलरेशन आई जे तुरदी भी स्पीड ਵਧਦੀ ਫਿਰ एक्सेलरेशन ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਖੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है जे स्पीड घट रही है तो एंगुलर रिटार्डेशन आ रही है मतलब स्पीड घट रही या बढ़ रही है ओके वो एंगुलर एक्सेलरेशन जे घट रही होगी मसला होगा पॉजिटिव होगी ठीक है टाइम t है एक प्लेसमेंट s होता है थीटा थीटा दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और t टाइम इंटर जितना भी टाइम ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤ पहली इक्वेशन b is equal to u plus a b ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗੱਲ u ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट plus alpha t this is equation ये पहली इक्वेशन ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट plus alpha t दूसरा s is equal to ut plus half a t s की दांत आएगा क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t यानी कि ut ओमेगा नॉट में रिप्लेस इनिशियल फाइनल ओमेगा ut प्लस हाफ अल्फा t ये दूसरी इक्वेशन
नोट करो ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੀਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ d square is equal to u plus 2as omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ f 2 ਪਾਈ f ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ is equal to 2 ਪਾਈ f ਇੱਥੇ f ਕੌਣ ਇੱਥੇ f ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ f ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 1 on time period 1 on time period या number of variations per unit time period या oblique part में number of vibrations per unit एक होगा number of vibrations per unit time या तो frequency is equal to 1 on time period और या frequency equal to number of vibrations per unit time ये दो चीजें आएंगी ठीक है एक काम ये साढ़े पांच का रहते लिखिए ओके कैसे भी बच्चे ने कोई शक एक और दसा ओमेगा दी यूनिट एसआई यूनिट के भी पता लगता सब एसआई यूनिट ओमेगा दी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड यूनिट होती है दी रेडियन पर सेकंड अल्फा दी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर तो ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਆ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਤੇ ਲੈਣੀ ਨਾ मीटर डिस्टेंस सी डिस्टेंस भी था एंगुलर डिस्टेंस एंगल एल ठीक है और एंगल थीटा और थीटा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਲੈਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 15 ਟਪਏ ਆ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ आगे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर सर ऐसा यूनिट हाँ बेटा बोल सर ऐसा यूनिट रिपीट करो की लिखी सी ओमेगा दी रेडियन पर सेकंड लेकिन अपॉन टाइम तो बनी है अल्फा दी हुंदी है रेडियन पर स्क्वायर ओके क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 अब फ्लाई व्हील ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ व्हील का ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਠੀਕ ਹੈ फ्लाई व्हील ਇਹਦਾ ਘੁਮਾਈਦਾ फ्लाई व्हील rotating at 420 rpm rotating at 420 rpm बड़ी चीज है 420 rpm slows down at the constant rate slows down on जाता जिधर पखा को पखे ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ slows down at a constant rate रेट की ਆ देखो ਉੱਥੇ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कॉन्फॉर्मेशन कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड 2 रेडियन पर सेकंड 2 रेडियन पर सेकंड ਦੀ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ the time required to stop the flight what is the time required to stop the flight wheel कितने देर
ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਓਮੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਐਫ ਠੀਕ ਤੇ ਆਰਪੀਐਮ ਦਾ ਸਮਝਾਓਗੇ Sir, 7. आरपीएम 7 radian per second. रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट किया Revolution per minute. रेवोल्यूशन पर मिनट रिवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट से कितने गेड़े देते पर ये तो साडी फ्रीक्वेंसी नहीं। मैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होने लगा चेक करियो माड़ी जी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड ये साडे पर मिनट है गलत है जितनी फ्रीक्वेंसी या इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट 420 आरपीएम ध्यान रखियो आरपीएम का मतलब होता रिवोल्यूशन मैं एक सवाल करके क्या लिखाऊंगा पर मिनट एक मिनट की रिवोल्यूशन है रिवोल्यूशन पर मिनट 420 इधर आरएस बनाओ रिवोल्यूशन पर सेकंड वो स्टैंडर्ड वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिस इज द की पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਆਰਪੀ ਅੱਛਾ ਜਾਊਗਾ ਆਰਪੀਐਮ ਆਈ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ 420 ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣਾ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 7 RPS हो गया। ओके ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7 आरपीएस मैं शॉर्ट लिख रहा था तो आरपीएम ਦੇ आरपीएस ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ 6 ਨਾਲ आरपीएम आरपीएस ਬਣੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੈਂਸੀ ਐਫ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਐਫ ਨੋਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ओमेगा ਚਾਹੀਦਾ ओमेगा नॉट कितना and ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट यही वाला जान के मैं लिखवाता हूं 2 pi f naught की वैल्यू 4 radian per second. 2 pi into 7 44 radian per second. ओमेगा नॉट आ गया 14 pi ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ 14 pi वैसे 22.7 के सेट भी हो जाएगा रोटे जाएगा ਇਹਨੂੰ 14 pi पर ਛੱਡਦਾ ਜੀ 14 pi radian per second ਲਓ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਅੱਛਾ फाइनली इन्हें रोकना स्टॉप हो जाए एंड फाइनल स्पीड 0 आ गई। ओमेगा इज इक्वल टू 0 वो है 0 क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी खत्म सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा अल्फा कितना 2 रेडियन पर सेकंड स्पीड मैं सही लिखा गलत लिखा मैं सही लिखा कि गलत लिखा मैं 100% लिखा पता तो क्यों एक माइनस का लगूगा इथे क्यों लगूगा बिकॉज गड्डी स्टॉप हो रही है फ्लाइट रुक रहा खड़ रुक रहा स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेट नेगेटिव अल्फा माइनस 2 एक कुंडी है हां जी इक्वेशन यूज करा टाइम करना The first वाली First equation. इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2 ओमेगा की वैल्यू 0 ओमेगा नॉट की वैल्यू 3 पाई माइनस 2t ये 2t नहीं 2t इधर तो सर नहीं 2t कर दिया 22 रेडियन 22 seconds आ 22 गया seconds. 22 seconds. टाइम है साडे कोले 7 पाई सेकंड 7 पाई का मतलब आ गया 7 into 22/7 7 ਨਾਲ 7 आंसर टाइम आ गया 20 सेकंड आफ्टर 22 seconds the flight is stop 22 सेकंड बाद फ्लाइट इधर है तो रुक जाएगा किसी भी बच्चे को शक रिकॉर्डिंग लाती है अपन हाँ जी बेटे क्वेश्चन लिखो आज का क्या आते बेटा क्वेश्चन हाँ परी खाई नहीं चटनी पर ने लाती है पागल
देखो, a fan is rotating at a fan is rotating at 300 rpm. (360 rpm). Fan is rotating at 360 rpm. When the switch is off, ਜਦੋਂ मैं switch ਨੂੰ off किया, turned off. When the switch is turned off, मेरी मर्जी का क्वेश्चन, मेरी मर्जी का सवाल, ਜਦੋਂ switch ਨੂੰ turn off ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ switch ਨੂੰ turn off ਕੀਤਾ बेटा, उदों की होया? When the switch turned off, then it retards at the rate of 5 radian per second square. 5 radian per second square at the rate of 5 radian per second square. Calculate the time taken to stop it. ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। पहली इक्वेशन सी, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at। पढ़े सच्ची सारे v इज इक्वल टू u प्लस, ये पहली इक्वेशन जी। v इज इक्वल टू u प्लस at आ, मैं ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇक्वेशन। v फाइनल वेलोसिटी सी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, सब इक्वेशन की कन्वर्ट कर। and initial velocity ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ initial angular velocity ਹੈਗਾ ਨਾ, angular angle upon time। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਟ करके आए। Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, ये भी एंगुलर स्पीड है। अल्फा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ए दी थां ते अल्फा, ए दा भरा अल्फा, ओके, ते टी का ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक इक्वेशन बन। दूसरी इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो जब रोटेशनल मोशन होती है तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करता। ओके, पार्टिकल इथों चलिया, गेड़ा दे के इथे पहुंच गया। ओके, इथों चलिया इथे पहुंच गया। हो सकता है इनिशियल एंगुलर स्पीड इथे ओमेगा नॉट होगी, इथे पहुंचने स्पीड बढ़ गई ओमेगा होगी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एस दी था ते डिस्टेंस होगी लीनियर डिस्टेंस। एंगुलर दे विच एंगल आ जांदे आ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एस नु रिप्लेस कीता थीटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਐਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਥੀਟਾ, u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ u ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨॉट t ਪਲੱਸ ਹਾਫ a ਦਾ एंगुलर एक्सेलरेशन a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ अल्फा t स्क्वायर। ये बेटा मेरी दूसरी इक्वेशन। ऐसी तरीके से मेरी थर्ड इक्वेशन की आई जमा सेम बेच, मेरी थर्ड इक्वेशन आई। थर्ड इक्वेशन की आई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ए दी थां ते अल्फा एस दी थां ते थीटा बेटा तीन इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन आ इन्हां नूं इदां ध्यान रखोगे तां वधिया है ठीक है क्योंकि ये सारियां इन्हां ते बणीਆਂ तीन याद ही साडे अपने आप ही बन जांदियां कौन की आ ਇਹ तो याद होना चाहिए कौन की आ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ याद होना चाहिए है ओके इथों तो लैके इथों तक टी टाइम लग्या एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा हुण एंगुलर एक्सेलरेशन हुंदी की आ एंगुलर एक्सेलरेशन जे बोला अल्फा तो लिखो ही आ अल्फा की हुंदी आ एंगुलर वेलोसिटी चेंज जिहदा एक्सेलरेशन की हुंदी आ एक्सेलरेशन हुंदी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो एंगुलर एक्सेलरेशन की चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एंगुलर वेलोसिटी कितना आया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी चेंज आया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम लगे अल्फा आ गया ये कितने लोड पे तो ਤੁਸੀਂ अल्फा कैलकुलेट कर कोई ऐसे ਤੇ ਦਾ ਬਣੇ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ e ਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ e ਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਅਲਫਾ ओमेगा ਨੂੰ ਇਧਰ ਜੋੜ ओमेगा ओमेगा प्लस अल्फा कोई ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ठीक है पुरानी ये चीजें चल रही हैं सारी दी सब पुराना है यस सर कोई शक किसी को नो सर नो सर करो सवाल आंसर मैं जान के रिपीट कर ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो जाए गल जे रिपीट ना करो तो गल क्लियर होनी नहीं जे रिपीट ना करो तो गल नहीं क्लियर होनी रिपीट करवा दा सुनो ध्यान दे नाल 360 आरपीएम वही गल वाली हुंदी दो चीजां हुंदियां आरपीएस जिहड़ी फ्रीक्वेंसी हुंदी आ ए आरपीएस हुंदी है स्टैंडर्ड ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ आरपीएस revolution per second number of revolutions per second आरपीएस आरपी ਸਾਨੂੰ आरपीएम ਦੇ आरपीएम ਦੇ आरपीएस ਬਣਾਓ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ पहली गल दूजी गल जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है बी आ ओमेगा इक्वल टू होंदा 2 पाई एफ ये भी फार्मूला कल लिखवाया था मैं रिपीट कर रहा कली कली चीज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट साडी इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ साडी फाइनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कह लो ठीक है आ एंगुलर है सिंपल फ्रीक्वेंसी ये चीजें याद रखनी है सब वेरी गुड कर मेनू चाहिए टाइम आ चीज मेनू दे फ्रीक्वेंसी है इनिशियल एफ नॉट इनिशियल फ्रीक्वेंसी देती है फाइनली जीरो होगी फाइनल जीरो होगी ठीक है तो फ्रीक्वेंसी देती 360 आरपीएम ये आरपीएस कितना बनावा भाई 6 आरपीएस डिवाइड बाय 60 यस डिवाइड बाय 60 रेवोल्यूशन बन गई 6 0 ना 0 कैंसिल 6 गया 6 आरपीएस एफ नॉट कितना आ गया 6 आरपीएस और मेरे तो एफ नॉट चाहिए नहीं मेरी किसी भी इक्वेशन में एफ लिखा ही नहीं मेरे को तो ओमेगा लिखे तो मैं ओमेगा दे देखो मेरे को है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट में यूज एफ नॉट की वैल्यू 6 2 पाई into 6 12 पाई ओमेगा नॉट आ गया 12 पाई रेडियन पर सेकंड पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा नॉट आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड किसी भी बच्चे को कोई होवे बच्चा अपना क्वेश्चन करे किसी भी बच्चे को कोई शक होवे अपना क्वेश्चन करे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन पर सेकंड कंटिन्यू करा ओमेगा कितना एंड फाइनल एंगल हाँ भी पक्का रुकया कि नहीं रुकया फिर रुक गया था 0 आउगा पक्का रुक गया ओमेगा 0 हो गया अल्फा कितना देता एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ਹੁੰਦੀ ਸੀ मोशन मीटर सेकंड है रोटेशनल मोशन हो गया रेड पर सेकंड मीटर दी था रेडियन ले ली लेंथ दी था एंगल ने ले ली ठीक है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर 5 लिखा कि -5 लिखा -5 क्योंकि रुक गया है। -5 केड़ी इक्वेशन करा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर The first one. फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट करो आंसर आ गया आंसर आंसर आ चुका है तो ओमेगा is equal to omega naught plus alpha t 0 is equal to 12 pi minus 5t 5t is equal to 12 pi t is equal to 12 pi upon 5 t is equal to 12 pi upon 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 12 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 into 22/7 ਜਾਂ 3.14 ਲਿਖ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ मेरी मर्जी का क्वेश्चन सी मेरी मर्जी का उसका आंसर होगा 72.5 seconds 7.54 72.5 seconds आंसर आ गया 72.5 सेकंड बाद पक्का रुक जूगा 72.5 सेकंड बाद पक्का रुक जूगा देखो किस बात समझ आ गया कि नहीं आ गया 7.54 आ रहा है देखो भाई मेरी गल सुन लो गलती थोड़ी मैं टेंशन ही नहीं लेना ही 13.45 आ रहा है मैं वो लिख दिया फिर मैं कैंसिल ही कर देना लिखना थोड़ी कैलकुलेशन कदे नहीं मैच करती किसी की रीपॉइंट वो 7 पॉइंट समथिंग आ गया तो 72 केड़े साल में आ गया अभी हाँ जी सर 7.54 आऊगा Yes, sir. चलो गलती कर दे सिंपल फंडा ਇਹਨੂੰ 3.1 ਲਿਖੋ 12 ਦੀ डिवाइड बाय 5 करो 7 ਤੇ ਜਾਊ ਸਿੱਧੇ 7 ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ 8 ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ 7 point something 7 point something रेडियन सेकंड ठीक है 7.5 समथिंग सेकंड देख लियो कंटिन्यू करांगे हुण एक गल दसो जे पक्का रुक सकदा ते पक्का चल भी सकदा हाँ जी सर ये पक्का रुक सकदा पक्का चल भी सकदा और पक्का रेस्ट तो स्टार्ट हो सकदा असि स्विच ऑन कीता स्विच ऑन करदे सारी पक्का स्टार्ट हो गया हुण भी स्पीड पई आ वो एक्सेलरेशन तुहानू देती वो एक्सेलरेशन इत्थे मैं कुछ भी लिख दूंगा दसो किन्ने टाइम दे विच वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर लूंगा ओदी मैक्सिमम स्पीड मैं दस दूंगा कितनी है भी इन्ने ने रेडियन पर सेकंड ये ओदी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दस दूंगा आरपीएम या आरपीएस भी जे तो ओमेगा मिल रेडियन पर सेकंड तो बड़ा ही चंगा नहीं तो आरपीएम आरपीएस तो बंदा देऊगा ही ठीक है ना तो बड़ी आसानी नाल बेटा ये कैलकुलेशंस हो जाए ओके कि नहीं ओके चलो एक काम हो इसी सवाल में बड़ा लिखो and angular displacement of fan angular displacement of fan दी angular displacement दसो मैं क्वेश्चन बड़ा कर रहा क्वेश्चन बड़ा कर रहा angular displacement कुछ नहीं क्वेश्चन बड़ा हूं आज मैं angular displacement पूछूंगी angular displacement का मतलब मैं की पूछे ਤੁਹਾਨੂੰ displacement ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂ Second and third ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ third इजी कौन सा third sir थर्ड इक्वेशन इजी है ठीक है सेकंड से टाइम का स्क्वायर टाइम को उठाया तो खराब करूंगा ठीक है आ सकता है अब फ्रॉम थर्ड वैल्यू इक्वेशन नंबर लगाती हूं क्वेश्चन ऐसे नहीं बड़ा किया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा वैल्यू पुट करती ओमेगा 0 ओमेगा 12 पाई
द होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा दी -5 थीटा फाइंड करना है। 5 दूनी 10 हो गया, इधर प्लस बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 12 into 12 पाई स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर। थीटा कितना है यार, वो पता भी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये थीटा रेडियन होगा, डिग्री च नहीं आऊगा। ये होगा ਤੁਹਾਡਾ 144 डिवाइड बाय 10 पाई स्क्वायर 22 into 22 डिवाइड बाय 7 into 7 6 बन जो। थीटा रेडियन में फाइंड कर दो। एक काम कर देते हो, ओके ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਚ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 14.4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ थीटा आ गया। Yes, sir. समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? यस सर। और बड़ा कर देना, मैं ऐसे ही क्वेश्चन और बड़ा कर देना। एनी डिस्प्लेसमेंट तो बाद पक्खा रुक गया, इन्ने एंगल बनाओ, एडा बड़ा एंगल बनाओ तो बाद पक्खा रुक गया। सवाल आया तुहानू, क्वेश्चन की आया तुहानू, दसो किन्ने किन्ने गेड़े कटे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टेकन बाय द फैन जस्ट अप टू द स्टॉप। ठीक है, स्टॉप होने तक उन्हें किन्ने गेड़े, ਉਹਦੀ वैल्यू दसो। सवाल बड़ा हो, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम करता सवाल और बड़ा है, की कर देगा? फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम फ्रीक्वेंसी टेकन, इनटू टाइम टेकन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आजू। गुड, शाबाश, करो जल्दी करो। क्वेश्चन बड़ा कर हमने, हाउ मैनी revolutions taken completed by the fan before stop। stop ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। दो तरीके कोले, पहला मैथड जिदा मैंने मीत ने दसा, शाबाश गुड। एक कहता जी देखो फ्रीक्वेंसी जी होंगी ना, फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी पुत्र? 1 upon time period. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड या पर यूनिट। कहता ये कर मल्टी, अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे पुत्र? सर 6 आरपीएस। जीरो होगी आज, हाँ जी, आज जीरो होगी, फिर की करिए? आंसर कितना आया तेरा? मेरा ही 45.24। रुक जा, ठीक है चेंज ला लेंगे ना। रुक जाओ, कोई नहीं। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ओके सर। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 12 ਆਰਪੀ एस 12 6 सर। फ्रीक्वेंसी 6 RPS होगा, 12 तक। 6 आरपीएस, हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी 6 आरपीएस और टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 7.7 7.25। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ, ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ? 2 ਪਾਈ। समझ आ रही है? एक गेड़े एंगल बनया 2 पाई। 2 पाई, यानी कि 2 पाई एंगल ने कितने गेड़े हैं? 2 पाई एंगल नाल कितने गेड़े बने? एक बनया। ठीक है सर। एक गेड़े च 2 पाई एंगल बनया ते 2 पाई गेड़े, 2 पाई एंगल ते एक ही गेड़ा होया। हाँ जी सर। 360 एक गेड़ा। केले वाला सवाल किया है किसी ने? खंड वाला
कितना है 5 ਕਿੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ कितना है सर ਆ ਜਾਓ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਬਣਿਆ 1 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ यूनिट ਇਹਦੇ ਬਣਿਆ 1 ਥੀਟਾ ਤੇ ਬਣਿਆ 1/2 ਪਾਈ 2 ਥੀਟਾ ਮਨਮੀਤ ਸਿਆ ਆ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 14.4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ upon 2 ਪਾਈ ਪਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ 7.2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਆ ਐਂਗਲ ਸੌਰੀ revolution 7.2 ਪਾਈ revolution ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ सर का ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 पॉइंट कुछ आ रहे हैं ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੈਥਡ ਗਲਤ ਸੀ ओके ठीक है वहम ना कर ली बड़ा शॉर्टकट ना मारे एक्सेलरेशन हो रही है रिटार्डेशन हो रही है हमें इसमें तो सेव रेट पे कर देगा समझ आ रही है ओके तो कुल मिला के सौखा तरीका की है नंबर शॉर्टकट फार्मूला की बनया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस नोट कर लो इज इक्वल एंगल ऑफ 2 पाई ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਾਈ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ 14.4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਆਇਆ 7.2 ਪਾਈ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 22/7 ਕਿੰਨੇ ਗੇੜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਲਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਡ ਕਿੰਨੇ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ बोलो भाई 22.6 वैल्यू फाइंड कर लो डेसिमल छाड़ दो मोड़ मोड़ वाली दिक्कत आ रही है 22 सर 22 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आया यस सर जी सर तक कंप्लीट है कंप्लीट 22 का 22 गेड़े पूरे पक्के ने 22 गेड़े पूरे कड्डे उस तो बाद रुक गया देखो किड्डी घैंट चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨੇ ਗੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸੇਮ ਜਮਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ एनसीईआरटी क्वेश्चन दोबारा सुनो एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर 7.14 एग्जांपल नंबर 30 कहना एंगुलर स्पीड आ किसी मोटिल दी ठीक है द इनक्रीज वो वध गई उन्होंने बोलिया तो एंगुलर स्पीड आ पर लिखा आरपीएम ਉਹਦੇ एंगुलर स्पीड लिखा स्पीड नहीं बनती है आरपीएम ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਈ ਜਾਵੇ ਆਰਪੀਐਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1200 ਆਰਪੀਐਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਟੂ 3120 ਆਰਪੀਐਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 16 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ 16 ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਫ ਦਿੱਤਾ ਐਫ ਦਿੱਤਾ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ओमेगा नॉट आ 2 पाई f 2 पाई और सॉरी पहला ਅਸੀਂ आरपीएम भी बनावांगे 20 rps बोल दिया करो 20 rps rps 20 sir 20 आ बन गए 20 rps अच्छा ਹੁਣ
2 RPS. 52 RPS. 52 RPS. 52 52 RPS गलती ਤੁਹਾਡੀ। नेक्स्ट AF नॉट सी। नाउ ओमेगा नोट ना बने। Sir, 40 pi radians Omega radian per second. 40 pi 2 radian per पाई second. F नॉट 45 के हिसाब ਨਾਲ बन गया। 40. 40 sir, 40. 40 sir. मैं क्या 45 बोल रहे थे 40 पाई Is sir 40. 40 पाई रेडियन पर ओमेगा 2 पाई F So 104. 104 pi radian per radian per second. second. 104 पाई पाई विच ही कहन रेडियन पर सेकंड बोले ला दी। चलो फाइंड की करना अल्फा ओमेगा दे ओमेगा नॉट का की वैल्यू क्या ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस एफ 104 पाई इज इक्वल टू 40 पाई प्लस 2 टाइम्स 16 सेकंड कर दो शाबाश। Sir, 4 pi 4 pi radian per 4 second. pi square. radian per second square. 104 माइनस 40 पाई बार कर लिया तो डिवाइड बाय अगले स्टेप से 16 कर देंगे अल्फा इज इक्वल आ गया कितने आए भाई 4 pi Pi Four radian per second. 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गलती ਤੁਹਾਡੀ पाई मैं ਨਾਲ ही रखा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है घट रही है स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ बढ़ रही है स्पीड इंक्रीज कर रही है अल्फा भी साडा पॉजिटिव आया जे घटदी ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ नेगेटिव ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ओके आ जाओ अगली गल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएंगे तेरे वाले तरीके ਨਾਲ मिल जाएंगे नहीं sir. ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ नहीं मिलना। ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ पहला थीटा डिस्प्लेसमेंट कर पहला थीटा फाइंड करो थीटा इतों करना कि इतों करना बोलो सर दूसरे वाले जो की दिखता है आंसर दूसरा थर्ड ठीक है वाले second question. आंसर ठीक है ओमेगा नॉट 40 पाई इनटू 1 प्लस हाफ अल्फा वैल्यू 4 पाई इनटू 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो देखो कितना 640 पाई प्लस 2 4 Sir, 1 1 दो मल्टीप्लाई किया 500 ਤੁਹਾਡਾ थीटा पाई आ गया 2 5 152. 1152 पाई Yes, sir. यस सर देखो ਤੁਸੀਂ कैलकुलेटर लेके बैठे मैं बिना कैलकुलेटर तो कितना हो गई नहीं सर हैं नहीं कैलकुलेटर नहीं लेके बैठा ना सर वीडियो ऑन कर देना मैं जानता ही मेरे 4 अखा लगी हैं ठीक है सर आ जाओ थीटा 11 बन गया नंबर रिलेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਅਪਨ 2 ਪਾਈ ਇੱਕ ਗੇੜ 2 ਪਾਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ Revolutions. 1152 पाई डिवाइड बाय 2 पाई फंक्शन कितने आ गए 576. 576 576 लिखा बड़ी तेज मोटर बल्ले बल्ले 576 रेवोल्यूशन ਇਹ ਬੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦਾ दे दो नवा क्वेश्चन the speed of a motor increases पेशेंट from रिपीट कर दो
the speed of a motor increases from 600 rpm to 1200 rpm. 600 rpm to 1200 rpm in 20 seconds. कितने सेकंड ਵਿੱਚ in 20 seconds. सर 6 आरपीएम seconds. दोबारा बोलो। 6 आरपीएम तो बाद 600 rpm ओके to 1200 rpm. F देती है 600 rpm, F देती है 1200 rpm. टाइम देता हूँ 20 सेकंड. टाइम देता 20 सेकंड. टाइम देता हूँ 20 सेकंड में. सेम क्वेश्चन देखो कौन पहला कर की फाइंड करना एक्सेलरेशन ते है ना अल्फा करो. हाँ अल्फा पता करो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करो. एक मिनट आंसर का विचार बेटा. ओमेगा नॉट फाइंड करो 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 2 आई इनटू 600 आरपीएम दे देना. पीएस बनाओ देखो पिछला वाली गलती में कर देना. 600 इनटू डिवाइड बाय 6 10 आरपीएस F is equal to 1.3 RS. कैंसल इस आ गया कैंसल V आ गया. F नॉट इनिशियल होगी 10 RPS, फाइनल हो गया 20 RPS. ओके नहीं हो गए ठीक है. वैल्यू पुट करो ओमेगा दी ओमेगा नहीं फाइंड करो. वैल्यू पुट करो 2 पाई ਨਾਲ डिवाइड कर दो. ਤੁਹਾਡਾ आंसर सेम आंसर जमा. ठीक है. नंबर ऑफ रिएक्शन आए अल्फा पाई रेडियस कर सकते हैं तो ठीक है ना. और नंबर ऑफ रिएक्शन आए ये आए 300 और ये साडा आंसर. मैंने पूरी उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया. यस सर सेम आंसर है जमा.